ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ Hi, hola amigos, je m'appelle, it's Urvashi Rautela. Yes, I got late for the red carpet because my private jet ki pilot, he thought Cannes is short for Kanpur. So now I have become the first female ladies to arrive at Cannes via Kanpur. Yeah, definitely. It's a big day for me. In the morning, I went to my temple and prayed to myself. So, no, I was not at Met Gala this year. No special reasons, just invite me, Aya. Oh, thank you. Actually, this dress, it's from Labuche and Debonchi Balenciaga. It's like a gift. And this tiara, it's from my Bhatiji ka birthday collection. And this parrot handbag, it's actually my favorite. बहुत लोग बोलते हैं उर्वशी आप अपनी तारीफ करते हो, you are your own Mia Mittu. So I got my own Mittu. Yeah, people are dying outside to meet me, but I only want to meet Leonardo DiCaprio और मैं उनके लिए एक केपरी भी लेकर आई हूँ. No, I'm not here to watch any movies because मैं सिर्फ अपनी movies देखती हूँ. I don't dabble into other films. I only do dabidi dibidi. Excuse me, bourgeois. Actually अगर यहाँ का golden visa मिल जाता तो कोई form fill करना हो सर तो thank you, sorry. Bonjour, je m'appelle Urvashi Rautela. Urvashi, how was Wimbledon for you? It was good. Actually, I don't know what records did the players make, but I became the first Indian female woman to be at Wimbledon with 4 Labubus. And to all the haters, I want to say that I bought tickets for each Labubu of mine because, you know, like they're like friends to me. Which pair did you enjoy watching the most? Well, my all-time favorite is obviously Ferrero Roger. I have heard he gets so many gifts, and like this Labubu, it was also a gift to me. My mother ने ये मुझे gift किया था after the success of, well, everybody knows now. And this one is he, and this one is Riri. So this was also a gift my father ने मुझे दिया था, and this one I bought it for myself, like a self gift, मतलब जो खुद को दिया जाए. So this was that, and this one was also like a gift. Who were you supporting in the finals? Well, I didn't quite focus on the finals because of my Labubus. Like they're so expensive. People might think that Urvashi, this is nothing for you, but these are actually very expensive for me, and people are so obsessed with me, like they want anything that belongs to me, so I wanted to keep them safe. Did you also meet Princess of Wales? Well, I did not meet her, she met me, and people have been asking for proof, give us pictures, but actually Kate ने अपने phone में pictures लिए थे, so ask her. And yeah, she agreed to return our Kohinoor back to us if I say yes to wear it. So I think I'm going to be the first Indian female ladies to wear Kohinoor. हाँ भाई सलोनी, मुझे सफाई करते हुए डायरी मिली. ये सब क्या लिख रही है तू इसमें? यही सब सीख के आ रही है स्कूल से? अरे अभी तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं है जो पहले ही रोने लग गई. क्या लिख रही है? अगर लिख ही दिया है तो बताने में कैसी शर्म है? मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, मेरा तो मन करता है घर से भाग जाऊं. जब भाग जा अभी. पूरे पूरे दिन इनकी सेवा में लगे रहो और फिर डायरी में आके पढ़ो कि मम्मी मुझे पसंद नहीं है. सॉरी मम्मी. और ये डायरी आई कहाँ से? मैंने तो नहीं दिलवाई थी. पैसे चुरा के लाई होगी मेरे पर्स से. बताओ, पैसे भी चुराने लग गई अब. और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने तेरे साथ इतना क्या गलत कर दिया जो तू ये सब लिख रही है. मम्मी मुझे डांटती हैं. आकांक्षा की मम्मी उसे बिल्कुल नहीं डांटती हैं. तो आकांक्षा के घर ही चली जा अगर उसकी मम्मी इतनी पसंद आ रही है. और हाँ, ये अमन कौन है जिसके बारे में इतनी तारीफें लिखी हुई हैं? अमन बहुत सुंदर है, अमन मेरा बहुत ध्यान रखता है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं. और उस कीर्ति को तो मैं बताऊंगी अगर उसने अमन से बात करी. कौन है अमन? कोई नहीं है मम्मी, डायरी दे दो ना प्लीज. डायरी क्यों मिलेगी अब? पहले तो तेरे पापा को बताऊंगी अब मैं, और फिर स्कूल जाके तेरी क्लास टीचर से शिकायत करूंगी कि ये सब सीख रही है स्कूल में. सॉरी मम्मी, प्लीज सॉरी. मैं आज से आपकी सारी बातें मानूंगी. बेटा ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, पापा को तो मैं तेरे तब भी बताऊंगी. बैग तो तेरा भारी लग रहा है. टिफिन पूरा नहीं खा के आई क्या आज? ये कौन सी किताब है? सिलेबस की तो नहीं लग रही है ये तो मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी मम्मी, कल वापस होनी है. पागल समझ के रखा है कि तूने अपनी माँ को? नाम क्यों लिख रहा है इस पे तेरा? और ये लड़के कौन है जिन्होंने कागज भर रखे हैं इसमें? ये सब तो बुक के ऑथर है मम्मी. ये चुप हो जाए एकदम. हु इज योर क्रश? आपने लिखा है रोहन. व्हाट इज योर ड्रीम?
टू मैरी रोहन। रोहन के घर पे पता है कि उनके यहाँ बहू आने वाली है। मम्मी सॉरी। माय फेवरेट पर्सन में भी रोहन का ही नाम लिखा है। यहाँ बेवजह ही तुम्हारी माँ जान छिड़के जा रही है तुम पे। मम्मी सॉरी प्लीज। अगला पेज आपकी बेस्ट फ्रेंड ने भरा है, श्रेया। इनके क्रश हैं मयंक जी। मम्मी ये बुक श्रेया की ही है, उसने मुझे भरने के लिए दी थी, मैं कल उसको वापस कर दूंगी। कौन मैसेज कर रहा है, दिखा मुझे। नहीं मम्मी। फोन दिखा। मम्मी ने दे। अरे बाप रे, 5 नंबर का आंसर लिखने में तो तेरी उंगलियां टूट जाती है, और यहाँ पूरी नॉवल लिख रखी है रोहन को, सब चीज बता दी है। मम्मी इज एंग्री। लो, एंग्री की स्पेलिंग देख लो, आई और ई लगाया है उसमें। दिन भर फोन चलाते हो, कम से कम क्विलबॉट का ऐप ही डाउनलोड कर ले, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक तो सही हो जाएंगी तेरी। मम्मी प्लीज फोन दे दो। फोन तो तू बेटा भूल जा। तू मुझे ये बता, जिस रोहन के पीछे तू मरी जा रही है उसका पेज पढ़ा है तूने? उसने अपने क्रश में किसका नाम लिखा है? श्रेया का। रोहन ऐसा नहीं है मम्मी, उसने ऐसा मजाक में लिखा था। हाँ हो सकता है, वैसे तेरे पापा भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं, तो जब रात को वो आ जाए ना तो स्लैम बुक का एक पेज उनसे भी भरवा लियो। नहीं मम्मी पापा नहीं, मम्मी प्लीज मम्मी पापा से नहीं। और मैं इस बार पीटीएम में जाके एक पेज तेरी मैडम से भरवाऊंगी। नहीं मम्मी सॉरी प्लीज मम्मी। सलोनी बेटा, कलश में पानी, सिंदूर और चावल लेकर आओ। घर में नया फोन आया है, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। ये देख कितना बढ़िया लग रहा है। अरे पागल हो गई है क्या? नारियल लेकर आइए, नारियल फोड़ेगी नए फोन पे। हरिओम। देख क्या रही है? अरे ये तो तेरे पापा का पेट अब निकल आया है। तेरी उम्र में तो हम तेरे फोन से भी ज्यादा स्लिम ट्रिम थे। ये ले बेटा, फोन की बैटरी कम हो गई, इसे चार्जिंग पे लगा दे। कम 90% है पापा, ये बहुत होती है। तुम्हें तो 85.62% भी बहुत लगती है। इतने ही आए थे ना बोर्ड्स में। चुपचाप जाके फोन चार्जिंग पे लगा, नालायक। पापा अब तक तैयार नहीं हुए, आज आपका और मम्मी का एनिवर्सरी डिनर है। अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कौन सा कुर्ता पहनूं जो तुम्हारी मम्मी की पिंक साड़ी के साथ मैच करे। अरे पापा, जेमिनाई है ना, हम इससे पूछते हैं। मुझे बताओ जेमिनाई, बेबी पिंक साड़ी के साथ इन दोनों में से कौन सा कुर्ता अच्छा लगेगा? मुझे ऊँटों वाला कुर्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बेबी पिंक साड़ी के साथ एक सुंदर और आकर्षक पहनावा बनाएगा। अच्छा, पिंक कुर्ते के साथ कौन से शूज अच्छे लगेंगे ये भी बता दो। इन जूतों का रंग आपकी पिंक कुर्ती के साथ सबसे अच्छा लगेगा। अच्छा पापा, मेरी 1-2 फोटोज खींचना। वाह सलोनी, तेरे फोन में तो बड़ी अच्छी फोटो आई है ना पापा? इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, पिक्चर्स तो क्लियर आएंगी। अरे सलोनी, ये बहुत सारे रिश्तेदारों की विशेष आई हुई हैं। एक वीडियो नोट बना के थैंक यू कर देते हैं सबको। भाई सभी रिश्तेदारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी ज्यादा आवाज आ रही है उस वीडियो में। तेरी मम्मी को भी तभी मिक्सी चलानी थी। कोई नहीं पापा, ऑडियो इरेजर है ना। भाई सभी रिश्तेदारों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बेटा, मान गया। इट्स समथिंग एल्स। अरे सलोनी, भूख लग रही होगी ना तुझे? पराठा खाएगी? पराठा? हाँ खा लूंगी, दे दो। मुझे तो लगी रही थी भूख, मैंने आपको बोला नहीं, मुझे लगा आपका काम बढ़ जाएगा। अरे उसमें क्या हो गया, मैं लेकर आती हूँ, मेरा बच्चा भूखा है। पराठा मिलेगा, ये ले। पॉलिथीन में कब से रखने लग गई आप खाना? अरे मैं तो इसे गाय को डालने जा रही थी, इसलिए पॉलिथीन में। फिर मुझे याद आया कि आज तो तू भी घर पे है, तू खा ही लेती है सब कुछ। खा ले आराम से, और अचार वगैरह चाहिए तो फ्रिज से ले लियो, पर थोड़ा ही लियो, तेरे भैया को भी पसंद है ना। पराठा भी भैया को ही दे दो।